So, well, good morning students. Today I will take a very small confined lecture on the varying number calculation, its characteristics and its significance. What does it mean basically? Actually, I was giving the series of the lectures on the design of varying. So I got the demand from the different type of students and some professional also that you give a very confined lecture on the varying number calculations, its significance and characteristics. But as already I have discussed in my series of the lecture which I am giving on the design of the varying, I have discussed on the varying calculation, on the varying number calculation. But that is not that much of detail. I have just, you can say, given the idea of the varying number calculations. So, different type of the suggestions you can say are the request from the students and some professionals. So they said that you make a very small, confined and small video on varying number calculations so that you can understand it well. Because in a series of lectures, we don't know that where this topic is, and otherwise for this lectures we have to go through whole of the lecture, which are very lengthy. You can say that is more than 2 hours, somewhere around half an hour, 1.5 hours like this. So on the demand of this, that I am just giving the varying number. Its significance and characteristics. Its significance and characteristics. So, this is the name of my topic today: varying number calculation, its significance and characteristics. As you already know that what is varying, you can say varying is that machine element, right? So which gives the supports to the rotating element. So why we use the varying? That there should be a very minimized friction between the varying surface and the shaft surface. So this is, you can say, this is the purpose of the varying that we use for the different type of applications, right? Now here the point is that when we will choose the varying, what is there? There are some letters, some numbers that is written on the varying. There is some number written on the varying. Also some letters, some words are also written on the varying, but that part I will not take in this lecture. For that part, I will make a very small another video. So what does it mean? So today only I will discuss about the varying number. So the varying number which is written on the varying, that about that number, for that number I will discuss. So that number which is written on the varying, you must know about it. You must know about the number. That what does it mean? We go to the market, we just purchase the varying. I'm just saying that the professional, our people, JEs, junior engineers, assistant engineers, moreover the people who are dealing in the industries. So they are often actually come across with the bearings, because bearing is a very important part in the functioning of the centrifugal pump, motors, somewhere else. So this is a very, very important part, and I think daily we are just coming across with the bearing. But the problem is, there are some number written on the bearing. We are not knowing about that number. What does that number means? We just go to the manufacturer, we just ask him that I need the bearing of 6306 number, RS, single RS or double RS, what is there. So we just go in the market and purchase the bearing. But we don't have the complete idea
what does it mean? So today my confined video, my confined lecture on the bearing calculation number, and I will give the complete information. I will try to give the complete information and detail of each and every number, so that you must come to know, and that is very important for you. The people who are working in the fields, who are working in the industry, and moreover the students, they should also know about this, because they will get a very, you can say, conceptual question in the GATE or the UPSC examination. So why? So that is why I have just taken this topic very separately. So you must try to understand, right? So bearing number calculation, as I have told you, that number which is engraved on the bearing, that number has its significance, has its characteristics. Each and every digit of the bearing number has its own value, own characteristics. And today we will discuss each and every number of the bearing. What does it mean? What are its characteristics? And what thing you will come to know? What the information you will come to know from this number, right? So this is about the bearing number. Now just see the example. So you can say, by knowing the meanings of each and every number which is written or which is engraved on the bearing, you know the type of the bearing. What type of the bearing is? You know the inner diameter of the bearing, you know the outer diameter of the bearing, you know the width as well as height of the bearing, and the series of the bearing, series of the bearing. So I will explain each and everything one by one. Let us take the example. I will take the example. Let us take the bearing. एक बेयरिंग है, उसके ऊपर अब क्या है, नंबर, सपोज करो बेयरिंग नंबर का उसने 6306. So this number is engraved on the bearing 6306. So first of all, you will see that there are how many digits are there. This is the first digit, this is the second digit, this is the third digit, and this is the fourth digit. So there are 4 digits. So from these 4 digits, we will get the type of the bearing. Or you can say we will get the characteristics, complete characteristics of the bearing. That what type of the bearing is, what is its width, what is its outer diameter, what is its inner diameter, what is the series of the bearing. So just see that how we come to know, or we will come to know that what type of bearing is. So here you can say, just see, I don't know, first digit, क्या है, first digit is 6. तो जो पहला डिजिट है, जहां पे अगर आप देखें तो पहला डिजिट क्या है, 6 है. वो जो फर्स्ट डिजिट है, फर्स्ट डिजिट हमें क्या देता है, फर्स्ट डिजिट गिव अस द टाइप ऑफ द बेयरिंग. सो फर्स्ट डिजिट से हमें क्या मिलेगा, टाइप ऑफ द बेयरिंग, कि बेयरिंग किस टाइप की है. तो फर्स्ट डिजिट यहां पे है, फर्स्ट डिजिट आपका क्या है, फर्स्ट डिजिट इज 6. फर्स्ट डिजिट क्या है, 6. सो 6 जहां पे होगा, 6 का मतलब क्या है, सिंगल रो डीप ग्रूव बार बेयरिंग. तो 6 नंबर डिपिक्ट्स द बेयरिंग इज, जो 6 नंबर होगा, कि मैं इसका टेबल दूंगा कि 1 नंबर का क्या, 1 नंबर पहला डिजिट होगा तो उस वक्त बेयरिंग कौन सी होगी, सेकंड 2 नंबर होगा तो कौन सी बेयरिंग होगी, थर्ड पे होगी. दैट आई विल गिव यू अ टेबल एंड यू मस्ट रिमेंबर दैट. सो फर्स्ट आई एम जस्ट टेकिंग द एग्जांपल. सो इन दिस एग्जांपल इज फर्स्ट नंबर इज 6. तो जहां से आपको टाइप ऑफ द बेयरिंग मिलेगी, तो बेयरिंग क्या है, सिंगल रो डीप ग्रूव, सिंगल रो डीप ग्रूव बार बेयरिंग, सिंगल रो
deep groove or bearing. पहला digit का आपको clear हो गया? Now the second digit, this is very important digit. Second digit, this is very important digit. इस digit से हमें what we will get the information, हमें क्या क्या information मिलेगी? सबसे पहले इस digit से हमें information मिलेगी कि इसका outer diameter जो होगा bearing का वो हम second digit से निकालेंगे because we have got a different type of charts in the design data book. The different type of the charts are given on the basis of your inner diameter, on the basis of your inner diameter and the digits, and the digits, or you can say digit number 6. This is single deep groove valve bearing. So from the design data book, from the different type of the charts from the design data book, what you will do, you will calculate the width of the bearing, height of the bearing, outer diameter of the bearing, or width or thickness of the bearing. So you can say this type of information that you will get from the second digit. Also, the second digit, it will give you the information about the series of the bearing. Bearing जो आपकी है किस series की है, that information also this digit will give. So second digit you can say, second digit is very very important one, and from the second digit you will get the different type of the characteristics of the bearing. So second digit से हमें क्या मिलेगा? Second digit से हमें, ये second digit है आपका 3, तो लिखिए यहाँ पे second digit number क्या है? 3. तो फर्स्ट हमें सेकंड डिजिट से मिलेगा, सेकंड डिजिट से हमें क्या मिलेगा? फर्स्ट इंफॉर्मेशन वी विल गेट विड्थ, लिख लीजिए विड्थ, आउटर डायमीटर, विड्थ and outer diameter of the bearing, right? Width, outer diameter and height also, and overall height of the bearing. So this information you will get from the second digit number 3. So second, it also give the information. It also give the information about the series of bearing. ये information हमें, these information that we will get from the second digit, right? तो second digit से हमें ये informations मिलेंगी. Width, outer diameter and overall height of the bearing, that we will get from the second digit, and these values you can calculate from the design data book by choosing the tables, like you can say the different type of the charts are there. So and also that will give the series of the bearing. तो bearing जो है किस सीरीज की है, तो इसमें भी मैं आपको एक थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दूंगा कि वो bearing किस सीरीज की है. देखिए इसको नोट कीजिए. अगर आपका आई विल जस्ट कॉपी सो 0-1 अगर लिखा है, 0-1 क्या होता है? एक्स्ट्रा लाइट सीरीज. मतलब अगर आपका दूसरा डिजिट या तो 0 है या 1 है, तो इसका मतलब होगा एक्स्ट्रा लाइट सीरीज. जो बेयरिंग है आपकी वो एक्स्ट्रा लाइट सीरीज की है. सो 2 नंबर डिपेक्ट्स, क्या नंबर डिपेक्ट्स करेगा? दैट इज लाइट सीरीज, दैट इज लाइट सीरीज. Yes, that is light series
नंबर आपका है मीडियम सीरीज, नंबर 4 हैवी सीरीज, and number 5 that is very heavy series. For 5 very heavy series. So this is the series I have given. Not on this. अगर जहां पे सेकंड डिजिट 0 और 1 होगा, दिस इज एक्स्ट्रा लाइट सीरीज। अगर 2 होगा सेकंड डिजिट जहां पे, तो लाइट सीरीज होगा। 3 होगा तो मीडियम सीरीज। तो जहां पे जो नंबर क्या था 3, इट मींस दैट दिस वेरिंग इज ऑफ मीडियम, up to this is clear। तो सेकंड नंबर का जो हमें सिग्निफिकेंस था, जो कैरेक्टरिस्टिक्स था, वो मैंने आपको बता दिया कि सेकंड नंबर से आपको क्या मिलेगा। इसका आउटर डायमीटर हम जहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, विड्थ और हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं, और जहां से आपको सीरीज मिलेगी कि आपकी ये जो बेयरिंग है ये किस सीरीज से बिलोंग करती है। अगर जहां पे ये नंबर 2 होता, 6206 होता, 2 नंबर होता, तो इट मीन्स ये सीरीज जो बेयरिंग है ये आपकी लाइट सीरीज में होती। यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ द थर्ड जो थर्ड पॉइंट है इसमें, थर्ड क्या है, लास्ट 2 डिजिट्स, लास्ट 2 डिजिट्स लेंगे। तो लास्ट 2 डिजिट क्या है इसमें, 0 और 6। अगर जब बेयरिंग लेते हैं तो लास्ट 2 डिजिट्स क्या है, 0 और 6। तो लास्ट 2 डिजिट्स हमें क्या बताएंगे, क्या इंफॉर्मेशन हमें इससे मिलेगी। सो हमें यहां से इंफॉर्मेशन मिलेगी कि बेयरिंग का इनर डायमीटर कितना है या कोर डायमीटर कितना है। सो लास्ट 2 डिजिट्स गिव्स द इनर diameter or core diameter of the bearing। तो ये हमें क्या देता है, इनर डायमीटर और कोर डायमीटर ऑफ द बेयरिंग। इनर डायमीटर या कोर डायमीटर दोनों सेम होते हैं। इसको कोर डायमीटर भी कहते हैं, इनर डायमीटर ऑफ द बेयरिंग भी कहते हैं। तो ये किस तरीके से देगा कि ये जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं, इसको हम क्या करेंगे, लास्ट 2 डिजिट्स को we multiply this by 5. So last 2 digits multiplied by 5 gives the core diameter. So that is gives the core diameter. तो जहां पे लास्ट 2 डिजिट्स क्या थे, 0.6, तो दिस इज यू कैन से 0.6 multiplied by 5, जहां से आपको इनर डायमीटर इसका मिलेगा 30 mm। तो जब आपको इनर डायमीटर मिल गया बेयरिंग का 30 mm है, फर्स्ट लेटर से आपको जब मिल गया कि दिस इज द सिंगल लो डीप ग्रूव बार बेयरिंग है और उसका इनर डायमीटर कितना है, 30 mm है। तो आप क्या करेंगे, डिजाइन डाटा बुक के ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स होंगे, तो वहां से चार्ट से आप सिंगल लो डीप ग्रूव बार बेयरिंग वाला चार्ट निकालें और जिसका इनर डायमीटर 30 mm हो और जो क्या हो, मीडियम सीरीज हो, मीन्स 3 नंबर के ऊपर, तो वहां पे आपको डिफरेंट टाइप ऑफ विड्थ, हाइट एंड आउटर डायमीटर ऑफ द बेयरिंग मिल जाएगा। सो दिस इज अबाउट योर लेसन कि बेयरिंग नंबर क्या है। अभी आगे देखिए, जहां पे मैंने बताया आपको कि कोर डायमीटर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, लास्ट 2 डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना पड़ता है 5 के साथ, ठीक। लेकिन मैं आपको एक चार्ट दूंगा कि 5 के साथ जो मल्टीप्लाई करना है कि कहां से मल्टीप्लाई होगा, जब आपका लास्ट डिजिट 2 डिजिट 04 होंगे। सपोज करो जहां पे डिजिट लास्ट 2 है 00, तो इस केस में क्या करोगे, 5 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो
तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो इनर डायमीटर क्या है, 0 हो गया बेरिंग का, तो ये गलत है। तो जहां पे मैं एक टेबल दूंगा कि जब आपका 0.1 लिखा है या 0.2 है लास्ट डिजिट या 0.3 है लास्ट डिजिट, तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको फ्लैट वैल्यू उसकी दी होगी, इनर डायमीटर की या कोर डायमीटर की फ्लैट वैल्यू आपको दी होगी, तो आपने उसकी फ्लैट वैल्यू लिख लेनी है। आपने उसको मल्टीप्लाई 5 के साथ नहीं करना है। 5 के साथ मल्टीप्लीकेशन कहां से शुरू होगी, जब आपके लास्ट डिजिट्स जो है 04, 05, 06, 04 से स्टार्ट होंगे, तो उस वक्त आपको क्या करना है, उसको लास्ट 2 डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है। इस तरीके से ये देखिए, जैसे लास्ट अगर आपके लास्ट 2 डिजिट्स आपके 0 हैं, राइट, लास्ट 2 डिजिट्स आपके 0 हैं, तो इस केस में जो आपका कोर डायमीटर होगा, इस केस में कोर डायमीटर होगा 10 mm, राइट, कितना होगा, 10 mm। ये फ्लैट डायमीटर आपको ले लेना है। तो अगर आपके लास्ट डिजिट जो है दिस इज इक्वल टू 0.1 है, तो आपका कोर डायमीटर आप ले लेंगे कितना, 12 mm। अगर लास्ट डिजिट आपका 2 है, 0.2 है, तो आप क्या लेंगे, 15 mm। और लास्ट डिजिट्स आपका 0.3 है, तो आप ले लेंगे 17 mm। और जब 4 जब आपका आएगा 0.4, तो जहां से आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 20 mm आएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट फर्स्ट जो आपके 3 डिजिट्स होंगे, जैसे 00 है, 000 है, 01 है, 02 है, 03 है, इसको हमने मल्टीप्लाई करके कोर डायमीटर नहीं निकालना है, इसका हमें फ्लैट डायमीटर दिया हुआ है 10 mm, 12 mm, 15 mm, 17 mm एंड आफ्टर दिस 04 जितने भी ऑनवर्ड्स इसके डिजिट्स होंगे, 04, 05, 06, 07, 08, 09 like this, then we have to multiply it by 5. Then we have to multiply it by 5 to calculate the inner core diameter, right? So one more important information I will give you, one more important information. देखो एक और important information मैं आपको देता हूँ, मैं एक टेबल बना के बताता हूँ आपको। Suppose एक टेबल है बेयरिंग नंबर, outer diameter OD, thickness and inner diameter. देखिए here see one more information from here. देखिए मैं पहले बेयरिंग लेता हूँ 6005, राइट, तो इसका आउटर डायमीटर जो होगा 47 mm, आउटर डायमीटर इज 47 mm, thickness is 12 mm and inner diameter is 25 mm. इसी तरीके से आपका आ गया 6205, this is outer diameter is 52 mm, this is 15 mm, thickness is 15 mm and the inner diameter will remain same, this is 25 mm. Then you will take 6305 bearing number 6305, its outer diameter is 62 mm, thickness is 17 mm and inner diameter again same, that is 25 mm.
then you take 146,405. This is 80 mm. This is 21 mm. Thickness 21 mm होगा और inner diameter is 25 mm. So from this table you see one thing. Why I have written the table here? From here you will see one thing. As you know, that your second leg, your second digit, you can say, your second digit, this one. This is your second digit of all the series of the bearing. This your second digit क्या देता है हमें? Gives the information about the series of the bearing. कि bearing जो आपकी है वो किस सीरीज की है? लाइट सीरीज की है, एक्स्ट्रा लाइट सीरीज की है, मीडियम सीरीज की है, हैवी सीरीज की है या एक्स्ट्रा हैवी सीरीज की, राइट? तो यहां से देखिए आप कि जो पहली अगर बियरिंग नंबर का आप देखें तो ये 0 है। तो 0 को जैसे मैंने आपको टेबल में बताया था कि 0 नंबर हमें क्या प्रेडिक्ट करता है? हमें ये बताता है कि दिस बियरिंग इज ऑफ द एक्स्ट्रा लाइट सीरीज। क्या है? दिस इज ऑफ द एक्स्ट्रा लाइट सीरीज। तो एक्स्ट्रा लाइट सीरीज की ये बियरिंग होगी तो यू कैन से दिस इज द एक्स्ट्रा लाइट सीरीज। एक्स्ट्रा लाइट सीरीज दिस बियरिंग। तो एक्स्ट्रा लाइट सीरीज की बियरिंग में देखो ये आउटर डायमीटर कितना है? दिस इज आउटर डायमीटर इज 47 mm। ठीक दिया है कि आप देख सकते हैं डिजाइन डाटा बुक से। इनर डायमीटर सेम। अब अगर ये नंबर 2 पे दिस इज 6205 तो इसमें सेकंड डिजिट क्या है? सेकंड डिजिट क्या रहेगा यहाँ पे? 2 सेकंड डिजिट इज 2। इट मींस दैट दिस बियरिंग इज लाइट सीरीज। क्योंकि जो मैंने आपको टेबल दिया था 0 1 जहां पे नंबर होगा 0 होगा या 1 होगा वो बियरिंग आपकी एक्स्ट्रा लाइट सीरीज में होगी। तो ये इसकी लाइट सीरीज में है, मींस ये उससे हैवी होती जा रही है। एक्स्ट्रा लाइट से ये लाइट है तो ये हैवी हो रही है। तो जहां पे देखें वन थिंग, जो आउटर डायमीटर है वो इंक्रीज हो गया। जहां पे पहले 47 mm था, नाउ दिस इज 52 mm और इसकी थिकनेस भी जो है वो भी इंक्रीज हो गई। नाउ यू कम टू दिस बियरिंग, दिस नंबर, दिस इज 6305। सो यू कैन से दिस बियरिंग इज ऑफ मीडियम सीरीज। नंबर क्या हुआ? बड़ा, तो सीरीज क्या होगी? मीडियम होगी। और मीडियम सीरीज में आप अगर फाइंड आउट करेंगे तो इसका डायमीटर, आउटर डायमीटर और इंक्रीज हो गया और थिकनेस और इंक्रीज होगी। एंड व्हेन यू विल कम टू दिस बियरिंग नंबर दिस इज नंबर 4 एंड नंबर 4 डिपिक्ट यू द व्हिच टाइप ऑफ द बियरिंग इज दिस इज द हैवी टाइप ऑफ द बियरिंग। 4 नंबर क्या हमें बताता है, इंफॉर्मेशन देता है दिस इज हैवी टाइप ऑफ द बियरिंग and its outer diameter is 80 mm and thickness is 21 mm. So from this table you come to know one point. You have just understood one point, that as the series of the bearing goes on increasing, means series of the bearing goes on increasing means from extra light to medium to heavy. So series of the bearing that goes on increasing, what happens? Your outer diameter as well as the thickness of the bearing that will also go on increasing. This is a very important point. If the series of the bearing goes on increasing, तो क्या होगा? उसका जो outer diameter होगा और जो उसकी thickness होगी वो भी क्या होगी? Correspondingly उसके साथ increase करेगी. So this is a very important diameter. This is a very important factor which you must understand. Inner diameter will remain same because it has no effect on the inner diameter. It has only effect on the outer diameter as well as the thickness of the bearing. I think you have understood this point. Now I will take one more example to describe you the bearing, and that example is of the 5-digit bearing. This I have given you the example of the 4-digit bearing. 5-digit bearing में सिर्फ एक चीज जो है वो क्या होगी? डिफरेंट होगी। दैट आई विल एक्सप्लेन कि 5-digit बेयरिंग्स जो जब होगी तब आपने उसके हर डिजिट का जो सिग्निफिकेंस है, जो करेक्टरिस्टिक्स है वो किस तरीके से होगा। एवरीथिंग दैट विल बी सेम, ओनली देयर इज वन डिफरेंस एंड दैट आई विल लेट यू नो देयर। सो नाउ 5-digit बेयरिंग नंबर nomenclature। देखिए
डिजिट का बेयरिंग नंबर नॉमिनेचर होगा तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा। उसमें देखिए जस्ट मैं लेता हूं एक बेयरिंग नंबर लेता हूं मैं, बेयरिंग नंबर 22206. This is the bearing number. Suppose it's the bearing number of the 5 digits. So there are 5 digits here. 1, 2, 3, 4 and 5. These are the 5 digits bearing. जो पीछे अपने explanation पढ़ी मेरे से, that is a 4 digit bearing. अब इसमें that is bit confusing for you because 4 digit का तो आपने पढ़ लिया कि first number हमें टाइप ऑफ द बेयरिंग देता है, सेकंड नंबर से हमें क्या मिलता है, विड्थ, हाइट और थिकनेस एज वेल एज द सीरीज ऑफ द मीटिंग बेयरिंग एंड द लास्ट 2 numbers that gives you the inner diameter of the bearing. But there are 5 numbers now, so naturally each number has its own significance, own value, own information which is giving own characteristics I will say. तो इसमें देखिए जो फर्स्ट नंबर होगा, फर्स्ट नंबर तो सेम होगा, मीन्स दैट विल गिव द टाइप of the type of the bearing. इससे तो टाइप ऑफ द बेयरिंग। और जो 2 नंबर है ये आपको क्या शो करता है, दैट इज द spherical roller bearing. 2 number is that is spherical roller bearing. तो टाइप ऑफ द बेयरिंग हमें मिल गई नंबर 2 से। तो 2 नंबर जो होगा इसका मतलब है अगर डिजिट 2 हो तो बेयरिंग की टाइप कौन सी होगी, स्फेरिकल रोलर बेयरिंग। अब जहां पे आ जाइए, ये जो सेकंड डिजिट है इसमें, अब ये जो इसका जो सेकंड डिजिट होगा, जब आपके पास 5 डिजिट होंगे तो ये डिजिट आपको शो करेगा विड्थ ऑफ द बेयरिंग, सिर्फ विड्थ और थिकनेस ऑफ द बेयरिंग, विड्थ ऑफ द बेयरिंग सेकंड डिजिट ये शो करेगा विड्थ ऑफ द बेयरिंग। जो थर्ड डिजिट है इसका सेम रहेगा, आउटर डायमीटर ऑफ द बेयरिंग एंड सीरीज ये किस सीरीज से है, राइट, एंड द लास्ट 2 डिजिट they are also same one that give you the inner diameter of the bearing. ये आपको देंगे ID of the bearing multiplied by 5. You understand this? So 2 this is give you the type of the bearing. तो पहला नंबर 2 जो है this is spherical roller bearing. Second width of the bearing, OD of the bearing is outer diameter of the bearing and series. तो देखिए यहाँ पे 2 है तो 2 से हमें क्या मिलेगा, सीरीज कौन सी मिलेगी हमें, लाइट सीरीज, कौन सी मिलेगी, लाइट सीरीज एंड 06 जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं दैट गिव्स यू द इनर डायमीटर ऑफ द बेयरिंग एंड दीज डिजिट्स दैट इज 06. So it means that you have to multiply this by 5 so that you will get the inner diameter of the bearing, that is 30 mm. Now the problem is, only the problem is that is the number 2, that is the width of the bearing. तो इसमें एक लिखिए आप इसमें टेबल विड्थ ऑफ द बेयरिंग में, सो विड्थ ऑफ द बेयरिंग का टेबल लिखूंगा मैं, विड्थ ऑफ द बेयरिंग। सो 1 नंबर है, ये क्या मीन्स करता है, वेरी नैरो, ये याद रखो, अगर 1 नंबर होता है इधर तो क्या होता है ये कि वेरी नैरो, विड्थ क्या है, बहुत ज्यादा कम है। 2 नंबर्स दिस दैट गिव्स यू द नैरो। अगर यहाँ पे सेकंड नंबर 3 होता दैट गिव्स यू द वाइड एंड 4 नंबर दैट गिव्स यू द एक्स्ट्रा वाइड, right? So these are the description of the number 2. ये आपको टेबल लिख लीजिए, याद कर लीजिए इसको।
जहां पे देखो 2 है, तो इससे हमें पता लगेगा कि ये जो बेरिंग है ये क्या है, वेरी नैरो, मीन्स इसकी थिकनेस का विड्थ जो है क्या है, वो वेरी नैरो, कम है। अगर यही नंबर जो है अगर आपका 3 होता 22306, तो इट मीन्स दैट दिस bearing is having a wide width, having a wide width, you can say. And if the number is 4 here, then it is extra wide. So this is only the difference. Rest everything is same. Last 2 digits that will give you the inner diameter or the core diameter of the bearing by multiplying it by 5. And the first letter, as I have already told you, and it is as usual, as in case of your the 4-digit bearing, that the first letter that gives you the type of a bearing, and that type of a bearing means if the letter is 2, this is the spherical roller bearing. I think you understood this thing. So this is all clear to you. If there are 5 digits, then how you have to give the nomenclature to the bearing? Every number is same. Only there is a difference in the number 2. Number 2 means that will give the width of the bearing. और जो उसका थर्ड नंबर होगा वो हमें देगा आउटर डायमीटर ऑफ द बेरिंग, राइट, आउटर डायमीटर ऑफ द बेरिंग एंड द सीरीज ऑफ द बेरिंग, राइट। अब देखिए बेरिंग ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको आप याद कर लीजिएगा, नोट करना है, याद करना है। ये टेबल आपको बहुत कम जगह उपलब्ध होगा, मिलेगा, तो मैं ये केवल आपको देता हूं। तो क्या टॉपिक होगा इसका, बेयरिंग फर्स्ट डिजिट एक्सप्लेनेशन, बेयरिंग फर्स्ट डिजिट एक्सप्लेनेशन। टेबल बना लेते हैं। तो किया गया फर्स्ट डिजिट बेयरिंग नंबर ऑफ तो फर्स्ट डिजिट है हमारा 1। अगर पहला डिजिट बेयरिंग का 1 हो, राइट, फर्स्ट डिजिट अगर क्या है 1 है, तो फर्स्ट डिजिट अगर 1 हो, सपोज करो मैं बेयरिंग लेता हूं, बेयरिंग नंबर है 1207, बेयरिंग इज 1207। तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हुए, 4 नंबर्स। तो जो पहला नंबर हमें शो करता है दैट इज सेल्फ अलाइनिंग बार बेयरिंग, दैट इज ये याद रखना है, सेल्फ अलाइनिंग बार बेयरिंग, सेल्फ अलाइनिंग बार बेयरिंग, yes, that is self aligning ball bearing। अगर आगे आपका डिजिट नंबर 2 आता है, तो मैं इसमें लेता हूं 22206। तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 5 नंबर। तो अगर 5 नंबर डिजिट होंगे तो क्या होगा, स्फेरिकल रोलर बेयरिंग, दैट इज स्फेरिकल रोलर बेयरिंग। तो ये क्या होगा, स्फेरिकल रोलर बेयरिंग, राइट। अगर तीसरा, अगर 4 डिजिट हैं, एक मैंने 5 का लिया, अगर 4 डिजिट होंगे, 4 डिजिट है, 4 नंबर है, 4 डिजिट 4 नंबर है, तो इसमें क्या कौन सा होगा, सेल्फ अलाइनिंग बेयरिंग।
ये होगा सेल्फ अलाइनिंग वेयरिंग, मीन्स सेल्फ अलाइनिंग रोलर वेयरिंग, सेल्फ अलाइनिंग वेयरिंग। जब से सेल्फ अलाइनिंग वेयरिंग लिखो तो इसका मतलब होता है सेल्फ अलाइनिंग रोलर वेयरिंग। नाउ दिस इज number 3, this is also number 2, sorry। तो फर्स्ट डिजिट जो आता है अब डिजिट आ गया, ये केस आ गया कि जब आपके पास 2 डिजिट वेयरिंग नंबर होंगे, ठीक है। अब इसमें आ गया 3 डिजिट, मैं लेता हूं वेयरिंग नंबर 3307, राइट, 3307। तो इसमें डिजिट कितना है, 4 नंबर्स। So this bearing is double row angular contact bearing. This is double row angular contact. Double row angular contact bearing. Right? तो इसमें एक नंबर 3 नंबर डिजिट 3 2 डिजिट 2 दफा आएगा ये। जब 5 सीरीज आएगी उसमें भी 3 आएगा इसका। 5 सीरीज में नंबर लेता हूं 32001 बेयरिंग नंबर अगर है तो 32001 बेयरिंग नंबर है 001। इसमें 5 डिजिट्स हैं, कितने हैं, 5 डिजिट हैं। तो इसमें ये कौन सी होगी आपकी टेपर्ड बेयरिंग, कौन सी टेपर्ड टाइप क्या होगी आपकी टेपर्ड बेयरिंग, टेपर्ड बेयरिंग, राइट। अब आपका डिजिट आता है 4, मैं ले लेता हूं 4 डिजिट में 4207, इसमें 4 नंबर है डिजिट के, और ये डिजिट क्या आएगी डबल रो डीप ग्रुप बेयरिंग। दिस इज डबल रो। अगर डिजिट 4 होगा, पहला डिजिट 4 होगा तो बेयरिंग नंबर कौन सा होगा, डबल रो डीप ग्रुप वाल बेयरिंग, डबल रो डीप ग्रुप वाल बेयरिंग, राइट। सो डबल रो डीप ग्रुप वाल बेयरिंग। तो जहां तक आप नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा सा रफ करूंगा। तो जैसे फर्स्ट डिजिट आया इसका 1207, बेयरिंग नंबर आपने देखा 1207, इसका फर्स्ट डिजिट क्या था 1 था, डिजिट इसके कितने हैं 4 हैं। तो अगर पहला डिजिट आए बेयरिंग में, अगर फर्स्ट डिजिट जो आपका 1 हो, जैसे ये बेयरिंग नंबर 1207, तो इस 1 से आपको ये पता लग जाएगा कि ये बेयरिंग जो है दिस इज सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेयरिंग है। इसी तरीके से ये मैंने 5 डिजिट कर लिया, क्योंकि देयर आर सम बेयरिंग व्हिच आर हैविंग 5 डिजिट्स नंबर एंड 4 डिजिट्स नंबर आल्सो। तो 5 डिजिट नंबर में अगर 5 डिजिट नंबर की बेयरिंग है और फर्स्ट लेटर उसका डिजिट जो है, नॉट लेटर, फर्स्ट डिजिट उसका 2 है, तो इसका मतलब होगा तब वो बेयरिंग होगी स्फेरिकल रोलर बेयरिंग। लेकिन अगर वही बेयरिंग जो होगी उसके नंबर ऑफ डिजिट्स 4 होंगे, जैसे बट फर्स्ट लेटर उसका भी 2 है, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं इसमें 4 हैं, फर्स्ट लेटर 2 है। तो अगर फर्स्ट लेटर 2 होगा तो डिजिट आपके 4 होंगे, तब ये बेयरिंग की नॉमेनक्लेचर चेंज होगा। दिस इज सेल्फ अलाइनिंग बेयरिंग, मींस सेल्फ अलाइनिंग रोलर बेयरिंग। You understand this point? This is very important because in case of 2 numbers, 2 digits, तो पहला डिजिट आपका 2 आएगा तो उसमें आपको 2 टाइप की बेयरिंग्स मिल सकती हैं। इसमें एक 5 डिजिट्स की बेयरिंग भी आएगी तो 4 डिजिट्स की बेयरिंग भी आएगी। जो 5 डिजिट्स की बेयरिंग होगी उसमें जो पहला लेटर डिजिट होगा आपका 2, अगर वो 2 होता है 5 डिजिट, तब बेयरिंग का नाम होगा या बेयरिंग की टाइप होगी स्फेरिकल रोलर बेयरिंग। और अगर 4 डिजिट वाला नंबर है और फर्स्ट लेटर आपका 2 है तो तब होगी सेल्फ अलाइनिंग बेयरिंग। अब आ जाएगा 3 में भी आपको 2 नंबर्स मिलेंगे, 3 में भी आपको 2 नंबर्स मिलेंगे। अगर 4 डिजिट वाला नंबर बेयरिंग नंबर है जिसके डिजिट 4 है और पहला डिजिट उसका 3 है, तब ये होगी डबल रो एंगुलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग। डबल रो
दिस इज डबल रो एंगुलर कांटेक्ट बेयरिंग। क्या होगा? डबल रो एंगुलर कांटेक्ट बेयरिंग। और अगर इसी सीरीज में आपके 5 डिजिट्स है तो पहला लेटर उसका 3 है, पहला डिजिट 3 है, बट डिजिट आपके 5 है, तो ये याद रखना दैट इज अ टेपर्ड बेयरिंग। ठीक है, अब आ जाइए फर्स्ट डिजिट 4 के ऊपर। अगर 4 है 4207 तो डिजिट आपके 4 है, तो दिस इज डबल रो डीप ग्रूव बार बेयरिंग। जहां तक क्लियर है तो आप पहले इसको सभी को नोट डाउन कर लो, और नोट डाउन करने के बाद मैं इसको रब करूंगा क्योंकि अब आगे मैंने कुछ और सीरीज लिखी है। ठीक है, नोट डाउन। नाउ दैट नेक्स्ट डिजिट 4 तक तो हमने कर लिया था। सो नेक्स्ट डिजिट अगर फर्स्ट डिजिट क्या है? 5 है। सपोज बेयरिंग नंबर है 51107, तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होंगे? 5 होंगे, राइट। तो इस टाइप की जो बेयरिंग होगी जिसमें 5 डिजिट होगा, उसमें बेयरिंग कौन सी होगी? ये थ्रस्ट बेयरिंग। इसको क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड द थ्रस्ट। This is called the thrust bearing. This is called the thrust bearing. अब शेम आ जाइए 6 नंबर डिजिट, ये तो अभी मैंने आपको बताया, वही लिख लेते हैं 6306 वाला। तो अगर 6 डिजिट हो, इसमें 4 डिजिट है, नंबर ऑफ डिजिट 4 है, तो ये कौन सी थी? सिंगल रो डीप ग्रूव बार बेयरिंग। तो अगर 6 डिजिट हो तो कौन सी होगी? तो अगर आपका 7 है डिजिट, पहला डिजिट आपका 7 है, तो ये होगी, अगर बेयरिंग नंबर सपोज आपका 7203 कुछ ऐसा, तो 4 डिजिट है, दिस इज सिंगल रो एंगुलर कांटेक्ट बेयरिंग। सिंगल रो एंगुलर, सिंगल रो लिखिए आप, सिंगल रो एंगुलर कांटेक्ट बेयरिंग। सिंगल रो एंगुलर कांटेक्ट bearing. So this is the table. I have given you the table here, and in the table firstly this is up to 7 के 1 अगर डिजिट हो उस वक्त बेयरिंग का क्या मतलब है? अगर डिजिट नंबर 2 हो, इन केस ऑफ 5 डिजिट्स ऑफ बेयरिंग, उस वक्त उसका क्या मतलब है? उसका बेयरिंग टाइप क्या होगी? अगर 4 होगा उसकी बेयरिंग टाइप क्या होगी? सो दिस इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यू विल नॉट गेट एनीवेयर, बट यू कैन गेट इन फ्यू बुक्स, बट मोस्टली इट इज वेरी डिफिकल्ट to get this. So this is the information which I have collected, and I am just distributing to you. So you must write on this, you must note on this. So here you will have the complete data of the first digit. That is the digit number 1, then what is the type of the bearing? If the digit number 2, then what is the type of the bearing? Like this. So this is up to the 7. तो मैंने आपको सारा बताया, अगर डिजिट आपका फर्स्ट डिजिट 7 होता है तो 4 डिजिट्स है, दिस इज अ सिंगल रो एंगुलर कांटेक्ट बेयरिंग। अगर वो 6 है तो ये सिंगल रो डीप ग्रूव बार बेयरिंग। अगर फर्स्ट डिजिट 5 है, दिस इज द थर्स्ट बेयरिंग। सो दिस इज कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर नॉमेनक्लेचर। जो नंबर नॉमेनक्लेचर था उसके बारे में मैंने आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिया, लेकिन अभी इसका जो सेकंड पार्ट है, क्योंकि बेयरिंग के ऊपर सिर्फ ये नंबर नहीं लिखा होता, बेयरिंग के ऊपर कुछ लेटर्स लिखे होते हैं, कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं, जैसे RS है, कहीं 2RS लिखा होगा, कहीं डबल जेड लिखा होगा, कहीं 2Z लिखा होगा, कहीं M लिखा होगा, कहीं K लिखा होगा। सो दीज वर्ड्स विच आर एनग्रेव्ड ऑन द बेयरिंग, दिस इज ऑल्सो हैविंग इट्स ओन सिग्निफिकेंट। कई दफा तो C1 लिखा होगा, C2 लिखा है, C3। So these words. So when these words, these letters are there, this is the first part which I have given about the bearing number. If bearing number ho, then what is the characteristics? What is the significance of the bearing? What is the characteristics of the bearing? What type of the bearing is there?
So second part, I will take it tomorrow. This is also of 10 to 15 minutes. When you will study both the parts, so then you have a complete information about the bearing, complete information, then there is no problem at all. So you can say that you will know that what type of the bearings you are using. If the bearing is written as suppose like this 51107 2RS, 2RS. So 2RS means क्या मतलब होगा? 2RS लिखा है, क्या मतलब होगा? 2RS का मतलब होता है कि बेयरिंग के दोनों साइड के ऊपर सील लगी है। तो मेरा कहने का मतलब है जो नंबर होंगे उनका भी एक अपना जो आपके लेटर्स होंगे उनका भी एक अपना सिग्निफिकेंट होगा। तो जिसको हम कल जो सेकंड पार्ट होगा इसका छोटा सा इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स का उसके बीच में देंगे। तो जब ये दोनों पार्ट आप इकट्ठे स्टडी करोगे तो आपके पास एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन इसकी बेयरिंग की आ जाएगी। इसको आप अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए, कहीं भी करना है। एंड दिस इज not for only for the students, this is for the professionals people also who are working in the government departments as AE or in the different position, and moreover for the you can say the industrial people who are working in the industries, who are working in the workshops like this. So this is a very wide spectrum, you can say this is having a information of quite wide spectrum information. So this is very important one. I think you must note on this, you must calculate this. But one point which is I want to tell you that mostly I have seen that I am just giving you the lectures while studying very hard, while just calculating, by having a good lectures I am trying to give. But one big point from your side, I have noted on that you are not sharing these lectures to your fellow friends, your students, your professionals. So that I want, because I have no interest in this. I just want that my free education, what little I am having, I just want to give the information, give the education to the students who requires more, who have no money to pay for the coaching or other things. But this is my humble request to all of you that you must share my video, share my lecture as maximum as possible. Whosoever get my lectures, whether that lecture pertains to him or not. But if he can share to the other people, maybe the other person who is of the need of this, who may be the student who is the need of this. So this is my humble request to each and every person who are just watching my videos, that please share and subscribe and share as much as possible. So this is all. Thank you very much. Tomorrow I will take the second part of this. Thank you very much.